Hello बच्चों, the next 5 minutes can change your life. Please 2023 NEET aspirants give me these 5 minutes. हो क्या रहा है? What is happening? You are writing the paper. You are unable to score well. You are scoring 350, 400 and that is why you are scared. Because आप डर रहे हो, you are scared, you are not giving papers. Last 60 days are remaining. I request you, please give papers. It can boost your score up to 200 to 300 marks. But MCQ practice करने की भी एक strategy है. Let me tell you the MCQ practice strategy right now, right here. Please listen to me very, very carefully. इतना मुश्किल नहीं है एमसीक्यू सॉल्व करना. यू डोंट नो द राइट वे टू डू द क्वेश्चंस प्रॉपरली. एग्जाम में आपके साथ 5 चीजें होती हैं. You are scared? Just say a yes ma'am on the comment section. It will really mean a lot to me. You are nervous. You have anxiety, nervousness, extreme fear. Because of which आते हुए questions भी आप गलत कर देते हो. Nervousness की वजह से you do a lot of silly mistakes. And towards the end of the paper, because आपने silly mistakes कर दिए हैं, आपने nervousness में questions आते हुए भी आपने गलत कर दिया, आपका paper is not going up to the level that you had anticipated, you had expected for yourself. That is why you overdo the questions that you don't know, blunder, you get negative marks, but it is not so hard. How do you have to approach a paper solving? मैंने mock test कितने देने, कैसे देने, बहुत videos बनाए हैं. But when your score is not improving, how do you approach a paper? Is something I'm going to tell you right now. So please listen to me. सबसे पहले बच्चों, hidden questions पे focus कीजिए. What are hidden questions? बेसिक पेपर 20-25% होता है, वेरी बेसिक विच एवरीबडी कैन आंसर. उसके बाद जो 45-50% होता है वो थोड़ा जेनरिक होता है, बट उसमें बीच बीच से चीजें पूछी होती हैं विच मे नॉट बी सो विजिबल टू द आई. देयरफॉर यू माइट डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. प्लीज मेक श्योर दैट यू एनालाइज एवरी पेपर. And आपको पता चलेगा मेरे बच्चों that a lot of questions come from tables and charts of NCERT. So spend next 2 days, Friday, Saturday, just spend it on analysis of each and every information, be it bio, be it physics, be it chemistry, स्पेशली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक. जो भी आपकी बुक में आपको इंपॉर्टेंट लिख रहा है उसको लिखो, या तो उसको बुक में लिखो, टेबल के साथ में लिखो, सो दैट यू आर एबल टू डू वेरी क्विक रिवीजन, या एक्स्ट्रा येलो पेजेस में लिखिए. यू हैव टू एनालाइज द चार्ट्स. एनालाइज कब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रहा है, कौन एक्सेप्शन है. यू हैव टू एनालाइज when is the value increasing, decreasing, what is the bio में exception, what type of pigment in algae chart. Analyze the table, उसका निचोड़ निकालो और एक पेपर पे लिखो. यहां से 2-3 क्वेश्चन आएंगे. अब multiple times you've read the book, still you're not getting confidence, still you're feeling that you will not be able to do it because you've not done this. Sometimes, now this is a big blunder which is costing you marks, and that is the reason you're not giving mock test. Not giving mock test is a blunder. Time management नहीं पता चलेगा एग्जाम में. जो लंबी थियोरी होती है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी थियोरी है, आप लोग क्या कर रहे हो, उस बड़ी बड़ी जो थियोरी है, बहुत मुश्किल मुश्किल लंबे लंबे पैराग्राफ्स है, लॉट ऑफ थियोरी which is written there in your exams, you are not really paying attention to it. आपको लग रहा है ये आता है while reading it. See, it's not a theory exam that we are preparing for. We are preparing for a NEET exam. तो जो लंबी चीजें हैं उनको carefully read करो, उनको memorize करो. उस लंबी चीज में 2-3 कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है. So don't just do passive reading. That can be a blunder. Let me tell you. आपने रीड करना है, क्या कह रहे हैं उसमें, कौन से 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, उसमें क्या मेमोराइज करने वाली चीज है. अंडरस्टैंड, मेमोराइज, रिपीट. एक्टिव पैसिव रिकॉल दोनों करो. एक बार एक्ट पढ़ो, बंद करो, एक्टिव रिकॉल, एक एक पॉइंट रीड करने की कोशिश करें. उसी लंबी थ्योरी में से असर्शन रीजन बना देगा, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बना देगा, आपको एग्जाम में पता नहीं चलेगा. केमिस्ट्री के ग्राफ्स आर नो डिफरेंट देन फिजिक्स. यू हैव टू लुक एट द ग्राफ. आपको मेमोराइज करना है, सिर्फ ग्राफ नहीं देखने. आप ग्राफ देखते हो, पन्ना पलटते हो, ब्लंडर.
बिग ब्लंडर। ग्राफ देखो, ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, वैल्यू कहां पे चेंज हो रही है, एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, वाई एक्सिस पे क्या दिया है, पढ़िए उसको, अपने आप ड्रॉ कीजिए। जब आप ग्राफ को ड्रॉ करने बैठेंगे बच्चों, आई एम टेलिंग यू द फाइनल डिटेल्स विल कम आउट द मोमेंट यू ड्रॉ द ग्राफ। जब तक आप ग्राफ को ड्रॉ नहीं करोगे, बिग ब्लंडर। एंड लेट मी टेल यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेज माय बुक हियर, बट जिन बच्चों ने देखो एमटीजी पब्लिकेशन इज नॉट गोइंग टू राइट सम आवारा बुक, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैंने एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया, एनसीईआरटी के पेज नंबर डाले, हर चैप्टर में 50 असर्शन रीजन डाले, बिकॉज हमने जो पेपर को एनालाइज किया पिछले साल से बहुत डिफरेंस है, राइट? मेमोराइज कीजिए, रिपीट कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्राफ्स को ड्रॉ कीजिए। एवरी डायग्राम इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन। हर एक लेबलिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने ड्रॉ करना है, आपने मेमोराइज करना है। और सबसे बड़ी बात, जो ग्राफ्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, उनको लिंक करो। क्या कहना चाह रहा है, शिफ्ट टू राइट कब हो रहा है, शिफ्ट टू लेफ्ट कब हो रहा है, क्वेश्चन आएंगे, क्या इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू कब डिप कर रही है, किस टाइप के ग्राफ है। जैसे इकोलॉजी में लिखा है कि यार आपका सी वेव पैटर्न ग्राफ्स कब बनते हैं, हर एक चीज को जो आपको डिफरेंट लग रहा है, अनरिलेटेड लग रहा है, पर आप उसको लिंक करो। इंफॉर्मेशन के वेब्स अपने दिमाग में खुद बनाओ। किसी और ने आपको माइंड मैप बना के दे भी दिया, इट विल नॉट बेनिफिट यू। You have to make your own mind maps. You have to make your own information maps. Only that is going to really benefit you. Link information, link reactions, link graphs, link tables, make them, draw them again and again. Then आपकी preparation में एक solid पन आएगा, which will boost your score. Definitely MCQ book को एक ले लीजिए. You can buy my book, you can buy any book which is available in the market. You can buy previous year question book, उसको 5-6 बार solve करो. आपको पता है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देने वाली हूँ, डेली मैं आपका टेस्ट सीरीज कर रही हूँ पीसीबी का। प्लीज वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, एनसीईआरटी को 4-5 बार पढ़िए। जो वीडियोस मैं अभी स्पेशली 7 डे चैलेंज में कर रही हूँ, पूरी 12th हम 7 डे चैलेंज में खत्म कर रहे हैं, प्लीज उनको अटेंड कीजिए ताकि आपका 12th हो जाए, आप मॉक टेस्ट पेपर दे सको। आज का मंत्र है, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, मेमोराइज करो, रीड करो, मेमोराइज करो, रीड करो, मेमोराइज करो, सॉल्व करो एमसीक्यूज, और जो गलतियां हो रही है उसकी एरर कॉपी बनाओ। संडे को मैं स्पेसिफिकली एरर कॉपी के ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी स्पेशली। अगर आपने ये नहीं किया, इट्स अ ब्लंडर। पहले पढ़ो बेटा, सीधा एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, डीमोटिवेट, डीमोरलाइज हो जाओगे। सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, अगर पढ़ते ही जा रहे हो, इफ यू आर डूइंग 70% रीडिंग ओनली, 30% एमसीक्यू सॉल्व, अगेन वन मोर ब्लंडर। Do 30% reading the concept, 30% MCQ solving, and 30% time in analyzing. Where is the mistake in making an error copy and revising the concept? It has to be absolutely sync में चलना। 30% read करो, 30% solve करो, analyze करो, 30% of the time में error copy बनाओ, और फिर 10% time में आप उसको revise कीजिए। I hope this helps. VD NEET, YT Biotronic आप कोड लगाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, टेस्ट सीरीज है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई देती हूँ गाइस, दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, देखिए, राइट? सो वी हैव अ वेरी, उसमें हम डेली आपके साथ शेयर कर रहे हैं टेस्ट। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टीमी वानी इज नीट बायो, प्लीज गो गेट, यूज दिस एंड कम, एंड सो दैट यू कैन गिव द टेस्ट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।